Hello friends, welcome to Bachao classes. I am Bachao sir, maths teacher. Bachao look, we have started to study our first chapter sets. Bachao look, we have completed our first 3 practice sets and now we are studying practice set 1.4. Bachao look, our fourth sum is: a survey was conducted to know the hobby of 220 students of class 9th. But look, a survey was conducted to know the hobby of 220 students of your class, that is class 9th. Out of which 130 students informed about their hobby as rock climbing. But look, 130 students have hobby of what? Rock climbing. This is one type of hobby, rock climbing, and having 130 students. Okay, chalo. And 180 students informed about their hobby as sky watching. Chalo, second type of hobby is sky watching. And how many? 180 students are having hobby of sky watching. Okay. Now look, there are 110 students who follow both the hobbies. But look, 110 having following both hobbies. But look, 110 following both hobbies. These are important statements for us. We have to concentrate on these statements. But look, 110 students follow both the hobbies. Means, but look, these 110 have hobby of rock climbing as well as sky watching. They are the members of both the hobbies. They are having both hobbies. Then, how many students do not have any of the two hobbies? Question is बच्चों लोग, then how many students do not have any of the two hobbies? किन बच्चों को दोनों में से एक भी हॉबी नहीं है, वो हमें ढूंढना है. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग नॉट एनी ऑफ द टू हॉबीज. हाउ मेनी ऑफ देम फॉलो द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली? तो बच्चों लोग, हमें ये भी ढूंढना है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव द हॉबी ऑफ ओनली रॉक क्लाइंबिंग. उसके अलावा कुछ भी नहीं, ओनली रॉक क्लाइंबिंग. एंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स फॉलो द हॉबी ऑफ sky watching only, and we have to find the number of students having hobby of only sky watching. तो चलो बच्चों, फर्स्ट इन सेट्स को नेम्स प्रोवाइड करते हैं. तो हमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशन लिखना या सम को थोड़ा हम अच्छी इंफॉर्मेशन में डाल सकते हैं. तो चलो बच्चों, पहले तो सेट्स को नाम देते हैं. फर्स्ट सेट इज रॉक क्लाइंबिंग. तो बच्चों, solution. Let set of the students. Let set of the students. Let set of the students having, or say following, having hobby of rock climbing. Hobby of rock climbing. चलो इन सेट्स को हम नाम दे रहे हैं. लेट सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग इक्वल टू ए. रॉक क्लाइंबिंग वाले जो भी है उनको हम बोल रहे हैं बच्चों लोग सेट ए. और सेकेंड हॉबी कौन सी है? स्काई वॉचिंग. एंड सेट ऑफ द स्टूडेंट्स having hobby of sky watching. Equal to B. Now, consider these two sets.
Set of the students having hobby of rock climbing, A. Set of the students having hobby of sky watching is B. Now बच्चे लोग information about these students is given, out of which 130 students inform about their hobby as rock climbing. बच्चों लोग 130 students की hobby क्या है? rock climbing है. तो बच्चों लोग rock climbing के तो हम A सेट बोल रहे हैं. तो बच्चों लोग number of A is what? 130. They have given the information, out of which 130 students have hobby of rock climbing. रॉक क्लाइंबिंग के हॉबी कितने स्टूडेंट्स को है? 130 मींस नंबर ऑफ ए इक्वल टू व्हाट? 130. एंड बच्चों लोग 180 स्टूडेंट्स हैव हॉबी ऑफ स्काई वाचिंग, जिसको स्काई वाचिंग को हमने कौन सा सेट बोला है बच्चों लोग? बी. तो नंबर ऑफ बी रहेगा 180. नाउ राइट दिस वैल्यूज प्रॉपरली. 130 रॉक क्लाइंबिंग वाला है, 130 रॉक क्लाइंबिंग वाला सेट अपना ए है, तो नंबर ऑफ ए बनेगा 130. और 180 क्या है? स्काई वॉचिंग हॉबी वाले लोग हैं. 180 स्काई वॉचिंग. स्काई वॉचिंग को हमने कौन सा नाम दिया है? सेट बी. तो नंबर ऑफ बी कितना है बच्चों लोग? 180. एंड 110 बोथ द हॉबीज. दोनों हॉबीज वाले लोग कितने हैं बच्चों लोग? 110. दोनों हॉबीज मींस ये सेट के भी मेंबर्स, वो सेट के भी मेंबर्स, दोनों सेट में है वो, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों लोग इंटरसेक्शन वाला सेट. 110 स्टूडेंट्स फॉलो बोथ द हॉबीज मींस उनको दोनों सेट के वो मेंबर्स है, दोनों सेट के मेंबर्स से जो सेट बनता है तो उसको हम इंटरसेक्शन वाला सेट बोलते हैं. कॉमन मेंबर का सेट होता है वो. तो बच्चों लोग नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी. इंटरसेक्शन वाले सेट्स में कौन से मेंबर आते हैं? इट इज मेंबर ऑफ सेट ए एंड मेंबर ऑफ सेट बी. दोनों सेट के मेंबर्स इंटरसेक्शन में आते हैं. और ये 110 क्या है बच्चों लोग? हैविंग बोथ द हॉबीज वाले स्टूडेंट्स हैं. तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में आएंगे 110. तो चलो बच्चों लोग ढूंढ लेते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी को. ए यूनियन बी को ढूंढ लेते हैं बच्चों लोग से यूजिंग द फॉर्मूला. यूजिंग द फॉर्मूला. कौन सा फॉर्मूला है बच्चों लोग अपने पास? नंबर ऑफ ए यूनियन बी. Number of A union B equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. Number of A union B equal to number of A plus number of B minus number of A intersection B. तो चलो बच्चों लोग number of A union B equal to number of A. How much? 130. Plus number of B 180 minus number of A intersection B में कितने मेंबर्स हैं बच्चों लोग? 110. सॉल्व करते हैं. नंबर ऑफ A यूनियन B इक्वल टू 130 and do this subtraction. 180 minus 110 is what? 70. देखो बच्चों लोग नंबर ऑफ A यूनियन B 130 प्लस 70 कितने स्टूडेंट्स है? 200. चलो नंबर ऑफ ए यूनियन बी सेट के मेंबर्स है 200. तो चलो ए यूनियन बी का मतलब प्रॉपरली लो. ए यूनियन बी की कंसेप्ट प्रॉपर होनी चाहिए. ए यूनियन बी के अंदर चलो कौन से मेंबर आते हैं? These are the members of set A और set B. A union B के अंदर कौन से मेंबर आते हैं? Members of set A और set B. इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर आते हैं? जो दोनों सेट के मेंबर्स हैं, जो दोनों सेट्स में हैं. और यूनियन में कौन से भी सेट का मेंबर रहा तो भी चलेगा. यूनियन के अंदर A सेट के सभी मेंबर्स, B सेट के सभी मेंबर्स होते हैं. तो चलो हमें क्या पूछा गया है उस क्वेश्चन को आप देखते हैं. How many students do not have any of the two hobbies? But chalo, first question is how many students do not have any of the two hobbies? तो first को अभी सॉल्व करते हैं. Number of students
do not have, चलो हमें पूछा गया है how many students do not have any of the two hobbies. हमें ढूंढना है number of students do not have any of the two hobbies. Any of the two hobbies. Our first question is this. How many students do not have any of the two hobbies? Number of students do not have any of the two hobbies. तो बच्चों इसको कैसे ढूंढना पड़ेगा? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स सर्वे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर सर्वे, और उसमें से बच्चों लोग जो भी स्टूडेंट्स का सर्वे हुआ है वो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, उसमें से ए यूनियन बी को हटा दो, क्योंकि ए यूनियन बी में कौन से स्टूडेंट्स हैं जिनको आइदर फर्स्ट वाली हॉबी है रॉक क्लाइंबिंग या सेकंड वाली हॉबी है स्काई वॉचिंग। यूनियन का मतलब मेंबर ऑफ सेट ए और मेंबर ऑफ सेट बी, दोनों में से किसी भी सेट का मेंबर रहा तो भी चलता है। तो बच्चों लोग सर्वे हुआ, जो भी बच्चे हैं सर्वे हुआ, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर सर्वे, और उसमें से किन को हटा दो? ए यूनियन बी वाले मेंबर्स को, क्योंकि इसके अंदर कौन से मेंबर्स हैं? These are the members of set A or set B. तो बच्चों लोग number of students do not have any of the two hobbies equal to total number of students under survey minus number of A union B. A union B means इन बच्चों को, इन students को कौन सी तो भी कम से कम at least they are having one of the hobby. At least they are having one of the hobby. तो बच्चों लोग टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अंडर सर्वे इज व्हाट? 220. 220 बच्चों का सर्वे हुआ है, और ये 220 में से ए यूनियन बी में कितने हैं? 200 मींस ए यूनियन बी दिस स्टूडेंट्स आर हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द हॉबी। तो ये जो बच्चे हैं हैविंग एटलीस्ट वन ऑफ द हॉबी, उसको क्या करते हैं? सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो बच्चों लोग आंसर आएगा 20. Number of students do not have any of the two hobbies is what? 20. चलो बच्चों लोग सेकंड क्वेश्चन, सेकंड में उन्होंने पूछा है how many of them follow the hobby of rock climbing only? How many of them following the hobby of only rock climbing? बच्चों लोग number of students having या से following having hobby of rock climbing only, rock climbing only, हमें ढूंढना है इसको। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ ओनली रॉक क्लाइंबिंग, तो बच्चों लोग इसको कैसे ढूंढना पड़ेगा? ऑल द स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग मींस नंबर ऑफ ए। नंबर ऑफ ए में क्या है? नंबर ऑफ ए में ए सेट काय का बना हुआ है? सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग रॉक क्लाइंबिंग। ये रॉक क्लाइंबिंग वाले सभी मेंबर्स है, रॉक क्लाइंबिंग के सभी, उनमें से बच्चों लोग जो दोनों हॉबी रखने वाले हैं, दोनों हॉबी रखने वाले जो स्टूडेंट्स है मींस ए इंटरसेक्शन बी वाले। ए इंटरसेक्शन बी में क्या होता है? तो बच्चों लोग इस सेट में कौन से मेंबर होते हैं? ए के भी और सेट बी के भी कॉमन मेंबर्स होते हैं। मींस ये 110 बच्चों को दोनों टाइप ऑफ हॉबीज है। देखो इधर 110 स्टूडेंट्स हु फॉलो बोथ द हॉबीज। तो बच्चों लोग ये जो भी रॉक क्लाइंबिंग वाले हैं इनमें सॉरी ये जो भी रॉक क्लाइंबिंग वाले हैं उनमें से दोनों हॉबीज जिनको है उनको हटाना पड़ेगा। दोनों हॉबीज किनको है? तो नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को हम बोलते हैं दोनों हॉबीज वाले बच्चे, स्टूडेंट्स। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, तो रॉक क्लाइंबिंग वाले कितने? टोटल नंबर ऑफ ए, रॉक क्लाइंबिंग वाला सेट है ए, टोटल बच्चे कितने होंगे रॉक क्लाइंबिंग वाले? नंबर ऑफ ए, और उनमें से किसको हटाना पड़ेगा? दोनों हॉबीज जिनको है उनको हटाना पड़ेगा। मींस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन में दोनों सेट के कॉमन मेंबर्स होते हैं। तो चलो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग द हॉबी ऑफ रॉक क्लाइंबिंग ओनली, रॉक क्लाइंबिंग वाले सभी बच्चे, और उसमें से हटा दो ये इंटरसेक्शन वाले कॉमन मेंबर, कॉमन बच्चे, दोनों हॉबीज वाले बच्चे हटा दो। तो नंबर ऑफ ए चलो 130,
दोनों हॉबीज रखने वाले 110। तो बच्चों लोग ये भी आंसर आया 20, 130 माइनस 110 20। नाउ बच्चों लोग थर्ड इज सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन। How many students follow the hobby of sky watching only? Sky watching now. तो बच्चों लोग number of students having hobby of sky watching only. Sky watching only. तो स्काई वॉचिंग वाले जो भी बच्चे हैं बच्चों लोग वो तो सेट बी के अंदर है। सेट बी इज व्हाट? सेट ऑफ द स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग, दैट इज बी। तो नंबर ऑफ बी में स्काई वॉचिंग वाले सभी मेंबर्स हैं, उसमें से किन को हटाते हैं? हमें चाहिए ओनली स्काई वॉचिंग वाले स्टूडेंट्स। हमें चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली। तो स्काई वॉचिंग वाले ये सभी, और उनमें से जो भी कॉमन मेंबर्स है, जो भी दोनों हॉबीज रखने वाले बच्चे हैं, वो कौन से? नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से बच्चे? दोनों हॉबीज वाले बच्चे हैं। तो बच्चों लोग ये सिर्फ स्काई वॉचिंग वाले, और उनमें से कम करते हैं, हटाते हैं दोनों हॉबीज वाले। मींस दोनों हॉबीज इंटरसेक्शन में कौन से मेंबर होते हैं? कॉमन मेंबर, सेट ए के बी, सेट बी के बी। तो बच्चों लोग नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैविंग हॉबी ऑफ स्काई वॉचिंग ओनली, स्काई वॉच ओनली। तो स्काई वॉच वाले सभी मेंबर्स और माइनस दोनों हॉबीज वाले मेंबर्स सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो नंबर ऑफ बी में कितने बच्चे? बच्चों 180 माइनस इंटरसेक्शन में इस कॉमन मेंबर दोनों हॉबीज वाले मेंबर्स कितने हैं? 110। दोनों हॉबीज वाले मेंबर्स हैं 110। सब्ट्रैक्शन करते हैं 180 माइनस 110, तो ये रहा 70। तो चलो ये था अपना फोर्थ क्वेश्चन। चलो सॉल्व करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन को। तो चलो अब फिफ्थ सम इज, फिगर इज गिवन, ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। तो चलो क्वेश्चन इज ऑब्जर्व द गिवन वेन डायग्राम एंड राइट द फॉलोइंग सेट्स। Set A, B, A union B, U means universal set here. Then A complement, B complement, and last one is A union B's complement. A union B's complement. Okay, chalo. Now see the figure. In this figure, you will notice some letters are capital letters A, B, and U. And some letters are small letters. And we have learned that name of the set is denoted by capital letter and its elements are denoted by small letters. तो बच्चों ये सेट का नाम है A और उसके मेंबर्स है सर्कल के अंदर जो भी मेंबर्स है उसके एलिमेंट्स मेंबर्स है। बच्चों B is what? B is name of this set. B is name of this set और सर्कल के अंदर जो भी है वो उसके एलिमेंट्स है। U is what? Universal set, और U rectangle is what? Set U. रेक्टेंगल के अंदर जितने भी मेंबर्स है तो वो सेट U जो भी यूनिवर्सल सेट होता है वो तो सबसे बड़ा सेट होता है, क्योंकि ऑल रिमेनिंग सेट्स आर सबसेट्स ऑफ यूनिवर्सल सेट। तो फिगर में जो भी सबसे बड़ा सेट है वो क्या है बच्चों लोग? यूनिवर्सल सेट है। चलो बच्चों लोग हमें जो भी क्वेश्चंस है, फर्स्ट इज व्हाट? सेट ए। सॉल्यूशन हमें ए सेट के मेंबर्स लिखने हैं। फर्स्ट इज व्हाट? ए। ए सेट का नाम है। तो देखो बच्चों कैपिटल ए इज व्हाट? नेम ऑफ द सेट। तो ए के अंदर कौन से मेंबर्स है बच्चों? सर्कल। ए सर्कल के अंदर कौन से मेंबर है? एक्स वाई छेद है, यम है, एन है। तो बच्चों एज मेंबर्स आर व्हाट? एम, एन, एक्स, वाई, जेड। इसको आप कौन से भी सीक्वेंस में लिख सकते हो। एक्स को पहले लिखा, एन को मिडल में लिखा, कहीं भी लिखा तो भी चलेगा, लेकिन ये सभी मेंबर सेट के अंदर होने चाहिए। बच्चों लोग दिस इज आवर सेट है, तो बोलो बच्चों लोग बी सेट क्या रहेगा? बी सेट, बी। तो बच्चों लोग बी, दिस इज बी सेट। बी इज व्हाट? नेम ऑफ द सेट।
और बी सर्कल के अंदर, इस सर्कल के अंदर कौन से मेंबर्स है? तो एम है, एन है, पी क्यू आर। कौन से भी सीक्वेंस से लिखो चलो, लेकिन सभी मेंबर्स दिखने चाहिए। एम एन पी क्यू एंड आर द मेंबर्स ऑफ सेट बी। उसके बाद में आता है चलो ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, थर्ड इज ए यूनियन बी। तो चलो यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट्स के सभी मेंबर्स। ए यूनियन बी के अंदर ए के सभी मेंबर्स और बी के सभी मेंबर्स, ऑल द मेंबर्स ऑफ सेट ए एंड सेट बी आल्सो। तो चलो पहले लिख लेते हैं सेट ए के मेंबर्स। ए के मेंबर्स कौन से हैं? एम एन एक्स वाई जेड, एम एन एक्स वाई जेड। और चलो बी सेट के भी एम एन पी क्यू आर है। तो एम एन तो ऑलरेडी हम लिख चुके हैं, तो बच्चे हैं कौन से? चलो पी क्यू एंड आर। दिस इज व्हाट? ए यूनियन बी, मींस ए के सभी और बी के सभी मेंबर्स। तो चलो बाद में हमें लिखना है यू। यू इज व्हाट? यूनिवर्सल सेट। तो यूनिवर्सल सेट बच्चों लोग, यू यूनिवर्सल सेट मींस यू में जो भी मेंबर्स है सब मेंबर्स लिखने हैं। यहाँ जो भी मेंबर्स है सभी मेंबर्स लिखने हैं। तो बच्चों लोग उसमें आएंगे एम एन पी क्यू आर, एम एन पी क्यू आर, देन एस टी और एक्स वाई जेड भी सभी। तो चलो एम एन पी क्यू आर एस टी एक्स वाई जेड मैंने सीक्वेंस लिख दिया। ए और कैपिटल ए और कैपिटल बी और कैपिटल यू को हम नहीं लिखेंगे। वाई? तो चलो दीज आर नेम्स ऑफ द सेट्स। वो क्या है? सेट्स के नाम है। बाद में है बच्चों लोग ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट मींस ए कॉम्प्लीमेंट की डेफिनेशन क्या होती है बच्चों लोग? इट इज द सेट of members which are not members of set A but they are members of universal set। A complement जो A के members नहीं है लेकिन universal set के अंदर है। तो बच्चों लोग A complement means A set के members छोड़ के बाकी बचे हुए सब। तो A में कौन से मेंबर आते हैं बच्चों लोग? M N X Y Z। और तो फिर अभी बचे हुए मेंबर्स हैं P Q R S and T, जो A के अंदर नहीं है लेकिन U के अंदर है। तो बच्चों लोग वो मेंबर्स है P Q R S and T, जो A के अंदर नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट में है। बच्चों लोग A कॉम्प्लीमेंट के बाद आता है B कॉम्प्लीमेंट। तो चलो लिखते हैं B कॉम्प्लीमेंट को। तो चलो B कॉम्प्लीमेंट में कौन से मेंबर्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स होंगे जो B के अंदर नहीं है लेकिन यूनिवर्सल सेट के अंदर है? B कॉम्प्लीमेंट मतलब द मेंबर्स व्हिच आर नॉट इन B बट दे आर इन U, यूनिवर्सल सेट के अंदर है। तो बच्चों लोग B छोड़ के B सेट में दिस मेंबर्स M N P Q R है B सेट के अंदर। तो B कॉम्प्लीमेंट में ये मेंबर छोड़ के बाकी बचे हुए U के सभी मेंबर्स। तो बच्चों लोग अगर इनको नहीं लेना है तो बाकी मेंबर्स कौन से बचे हैं? X Y Z S and T। तो बच्चों लोग B कॉम्प्लीमेंट में जो B के मेंबर्स नहीं है वो छोड़ के बचे हुए मेंबर्स, उसमें बचे हुए कौन है बच्चों लोग? S T and X Y Z। These are the members of set B complement। B कॉम्प्लीमेंट B के अंदर नहीं लेकिन U के अंदर है। Now बच्चों लोग A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, लास्ट इज A यूनियन B और उसका कॉम्प्लीमेंट। बच्चों लोग A यूनियन B, A यूनियन B मींस A और B के सभी मेंबर्स। A यूनियन B के अंदर कौन से मेंबर्स है? इतने सारे, दोनों सर्कल के अंदर जो है वो A यूनियन B के मेंबर्स है। तो कॉम्प्लीमेंट में ये मेंबर्स नहीं आएंगे यूनियन वाले, जो A और B के अंदर है वो छोड़ के, कॉम्प्लीमेंट मतलब ये छोड़ के, तो यूनियन में जो है वो छोड़ दो। बाकी बचे हुए कौन से बच्चों लोग? S and T। A यूनियन B के अंदर नहीं है ऐसे मेंबर्स कौन से बच्चों लोग? S and T। तो बच्चों लोग A यूनियन B कॉम्प्लीमेंट, अगर उन्होंने A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट पूछा होता, पूछा नहीं है इधर लेकिन अगर पूछा होता A इंटरसेक्शन B कॉम्प्लीमेंट,
तो बच्चों लोग ए इंटरसेक्शन बी तो इतना पार्ट है, सिर्फ उसके अंदर कौन सा है, एम एंड एन। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब कॉमन मेंबर्स ऑफ ए एंड बी, ए एंड बी के कॉमन मेंबर्स का है तो यहाँ है। तो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट होता इनको छोड़ के बाकी बचे हुए सब, एम एन को छोड़ के बाकी बचे हुए सब। तो बच्चों लोग ये था अपना क्वेश्चन 5। यहाँ एंड होता है अपना प्रैक्टिस सेट 1.4। बच्चों लोग अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करो, अपना चैनल जो भी है बच्चों क्लासेस उसको सब्सक्राइब करो, और बच्चों लोग ये वीडियो लिंक अपने जो भी फ्रेंड्स हैं 9th कक्षा में पढ़ रहे हैं तो उनको भी हेल्प हो जाए, इसलिए ये वीडियो उनको शेयर भी करो। तो बच्चों लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में।